just for the sake of my information, how many students are there, those who do not understand Marathi? Kindly for my information, you raise your hands. Only two. Okay. And other students, they understand Marathi, Hindi and English. Pardon? Yes. So, before starting, we must be aware of our base. And we live in this country. So, what is our base? Our nation is our base. If there is no land to stand, nothing is impossible. So everything must be started with adoring, worshipping, loving our motherland. So, to respect our motherland, I will chant some mantras. You can put your hands together and then we will start. Chaubiji. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananantva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmana Brahmanaspata Anashunvannotibhisida Sadanam Mahaganapataye Namaha Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Asato ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Stay like that only. Keep your eyes closed. Your hands must be folded, only you have to open your eyes and you have to keep your ears open. Relax. हाथ मोकड़े करो, हाथ खोल दीजिए. अच्छा, आप हिंदी समझ लेते हो? You? हिंदी समझ लेते हो? यहाँ पे कोई साउथ इंडिया से कोई नहीं लगता है. One who understand only English. Is there anybody? Okay. Means except two students, all are from Maharashtra only. Am I right? Yes. ठीक आहे. म्हणजे मराठीतले जरी तुम्हाला रेफरन्सेस दिले तरी तुम्हाला लगेच लक्षात येतील. आणि तसाही सध्या मल्टीलिंग्वल अप्रोच सुरू आहे. तर इथे उपस्थित असलेले माझे प्रिय भारतपुत्र व भारतपुत्री, जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत ऐसे संबोधन से होनी चाहिए कि जिसमें आप सब लोग समाविष्ट हो जाए. ऑल एनकम्पासिंग. Nobody must be excluded. It must be inclusive. Spirituality means all inclusiveness. I am not saying copies with anybody. I suggested, sir, you remove your copies, notebooks. हम सुन के ना, इतना हमारा मेमोरी कार्ड नहीं है कि
ये आपको सब याद रहेगा। Spiritual means to be humble, always in learning mode. Swami Vivekananda's Guru, Ramakrishna Paramahansa, he used to say, as long as I live, so long do I learn. थोड़ा बंगाली भी सिखा देंगे आपको। हो सकता है कि भविष्य में आप जब ट्रेनर बन जाओगे तब काम में आएगा। ट्रेनर माने क्या होता है? यहाँ वहां से उठा के एक जगह इकट्ठा करना, प्रेजेंट करना, जनरली वही होता है। We must have very realistic approach। मेरी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत ही स्ट्रेट होती है। I don't beat about the bushes। स्ट्रेट होना चाहिए। स्पिरिचुअल मीन्स एकदम क्लियर परसेप्शन। मैं जो हूं, जैसा हूं या जैसी हूं, खुद को एक्सेप्ट करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट एजम्पशन। एज्यूम नहीं करना। आजकल जितना भी काम है ना वो अपीयरेंसेस के ऊपर चल रहा है। अपीयरेंसेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट। स्पिरिचुअलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। Spirituality is unfoldment, personality development, and spirituality unfoldment. It is unfolding. जैसे पंखा जो है, यहाँ पे तो पंखा नहीं, एसी है। एसी के अलग अलग वर्जन वो डेवलप होते हैं, लेकिन उसके भीतर की जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज सेम एवरीवेयर। In fridge, same electricity is there. In fan, same electricity. In AC, same electricity. In heater, same electricity. जो common principle है, that is spirituality. Spirit तक पहुंचना। बहुत लोग spirituality को religion समझ लेते हैं। Just religion, doing some rituals, visiting temples, reading certain books, that is not spirituality. That is part of habit. It satisfies your ego. Oh, I belong to this tradition, I belong to that tradition. It pampers your ego. And ego always create problem. Ego में क्या होता है कि हम दूसरों से कुछ स्वयं को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अलग है। अलग है का मतलब ही होता है कि अंदर एक एरोगेंस आ जाता है। आप अपने आप को अलग सिद्ध करने की कोशिश करोगे, उसी समय आपके भीतर ईगो आ जाता है। तो आपको अलग होने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? वो करना है, लेकिन बहुत ही स्पॉन्टेनियस वे में। गुलाब बनने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करता है सच। गुलाब सिर्फ कंपैरिजन वैसे होता ही नहीं है। वॉट एवर आई एम टॉकिंग, In this context I am talking. गुलाब की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाब है, जास्मीन है, लोटस है, मैरीगोल्ड है। कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? तो पहले ये चीज याद रखना, कॉर्पोरेट हो, कहीं पे भी हो, पहले आपके जीवन में क्लैरिटी चाहिए। मैं उतना ही बोलता हूं जितना मैं जीता हूं। There is no contradiction in my life and in my speech. इसलिए बहुत बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप बहुत ही सहजता के साथ बोलते हैं। बोला जीवन में अगर सिंक्रोनाइजेशन हो ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। जो हिपोक्रिट्स होते हैं उनको सोचना पड़ता है, जो डुप्लीकेट होते हैं उनको सोचना पड़ता है, जो ओरिजिनल होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है। And present world is world of hypocrisy. Present world is world of duplicacy. चेहरे पे कुछ और होता है, भीतर कुछ और होता है। जब हमको ड्रामा करना है तो भी कॉन्शियसली ड्रामा करना। कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली ड्रामा करते हैं ना, उसमें ट्रैप नहीं होते।
जब कॉन्शियसली करते हैं, हाँ, भविष्य में आपको बहुत बार करना होगा आपके बॉस के सामने, जिनको आप बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, हाँ, नहीं होता है रिस्पेक्ट, क्या करें, नहीं होता है ना। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। पहली मुलाकात में अगर आपका परसेप्शन अगर बहुत क्लियर रहा, तो पहली मुलाकात में आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कितना घटिया है और कितना अच्छा है। अंदर में आपके भीतर वो सेंस डेवलप होता है। सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। वन लाइन डेफिनेशन आपको देता हूं, वो लिख के भी रखना। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई में, क्लास 8 के बच्चे थे। उनको जब मैंने ये डेफिनेशन बताई, 2 दिन तक पूरे कैंपस में वो डेफिनेशन गूंज रही थी बच्चों की मुंह से। छोटे बच्चे क्लास 8 के। मैं सोच रहा था कि इनको मैं किस तरह से बताऊं, एंड दैट वाज माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। स्पिरिचुअलिटी इज सिंप्लिसिटी माइनस स्टुपिडिटी। Spirituality is simplicity minus stupidity. Always be simple, but never be stupid. अगर बेवकूफ भी बनना है ना, कॉन्शियसली बेवकूफ बनना है। जैसे भगवती सीता ने रावण को बेवकूफ बनाया। जनरली क्या कहा जाता है कि रावण सीता का अपहरण करके लेके गया। She was playing with रावण। कैसे? सुन लीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला, हाँ? जिसका जनक राजा की पुत्री, वो क्या ऐसी होगी, क्या गवार होगी क्या? उसको समझ में नहीं आता है बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा समझ में नहीं आती है, हाँ? सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया कि बच्चे के साथ खेलेंगे। हालांकि उम्र में बड़ा था, लेकिन हमारे भारत में ना आयु का सम्मान नहीं होता है, समझदारी का सम्मान होता है। भारत में जो सच्चा भारत है, उस भारत में आयु का सम्मान नहीं होता। जो गधे होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उम्र में बड़े हैं इसलिए हमको रिस्पेक्ट दिया जाए। नो, विजडम इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, विजडम इज ऑलवेज अडोर्ड, विजडम इज ऑलवेज वर्शिप्ड। जिसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इज नॉट नॉलेज, ज्ञान इज नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन माने जानकारी, विजडम माने समझदारी। बहुत बार होता है ना, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन जब बड़ों का ईगो हर्ट होता है ना, बड़ों से मुंह लगाता है, हाँ? जवान लड़ाता है बड़ों से, ईगो हर्ट हो गया, उनके पास आंसर नहीं, इसलिए वो बोल देते हैं। अरे बोलो ना सही से, आप आंसर दो, लॉजिकली कुछ प्रूव करो, हाँ? बहुत बार होता है ना, चलो चाचा के पैर छू, क्यों छुए? बड़ों के पैर छूने, अरे वो घटिया इंसान है, उसके पैर क्यों छुए? फिर क्या करेंगे? अब लॉजिक टिक नहीं पाता है। जब लॉजिक टिक नहीं पाता है तो वो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र? वो, हाँ, बड़ों से जुबान लड़ाता है, हाँ? बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। अरे बड़ों माने क्या, उम्र में ही बड़े हो गए, हाँ? ये क्यों कहना पड़ रहा है? 150 साल में हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की है। आप लोगों के सामने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। पहले चैलेंजेस थे, अभी चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। नाउ चैलेंजेस आर नो मोर, नाउ देयर आर ओनली कॉम्प्लिकेशन। सब कुछ होने के बाद बावजूद भी भूखमरी है। जितने जितने होटल्स बढ़ते जाएंगे, उतने उतनी भूखमरी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी भूखों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस है। भीतर से और बाहर से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है ठीक से। आपका इंटरनल लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ वो मिसमैच हो रहा है। मैचिंग सिर्फ बाहर दिख रहा है। प्रेजेंट मैन इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उसको समझ में नहीं आ रहा है, फटे कपड़े पहने या सिले हुए कपड़े पहने, फिर कंफ्यूज हो जाता है, तो अच्छे कपड़े खरीदता है, उसको फाड़ के पहनता है। अरे तय कर लो ना भाई। पहले एकदम क्लियर था, कपड़े पहनेंगे जब तक फटते नहीं तब तक पहनेंगे। अभी तो नए कपड़े पहनते हैं, उसको फिर फाड़ते हैं, फिर उसको पहनते हैं, है ना? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है एग्जैक्टली। सेटिंग गोल्स वगैरह। अरे गोल माने क्या होता है? आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटसेट्रा। अज्ञान में नहीं रहना। आप यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं क्या? हाँ बोलो। नो, सैलरी प्राप्त करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे।
कोई ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके दिमाग में पैसा 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 चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसका डायग्नोसिस होना चाहिए ना। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है, अर्थ क्या है, जिसको संस्कृत में अर्थ कहते हैं। अर्थ क्या है समझ में आना चाहिए, और अर्थ को कैसे हैंडल करना है। हम भगवती सीता की बात कर रहे थे। भगवती सीता रावण के साथ खेल रही थी। हाँ, सीता स्टैंड्स फॉर लक्ष्मी, उसको अचीव करना चाहता था। रावण जो है ना, रावण वेरी एम्बिशियस पर्सन विद 10 हेड्स। माने कितना एम्बिशन होगा, 10 दिमाग से वो सोचता है। एट ए टाइम 10 जगह वो एमबीए कर रहा है। क्या दिमाग होगा, सुपर फास्ट। वो पैसा कमाना चाहता है, सीता को कैप्चर करना चाहता है, लेकिन सीता को कैसे कैप्चर करना है ये उसको पता ही नहीं है। ये तो बहुत ही पोएटिक वे है समझाने का। सीता को तो लेके जाता है, अपने साम्राज्य में उसको बंदिस्त भी करता है, उसको बंद करके रखता है। और कभी भी आप पैसे को रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते। जब भी आप पैसे को रोकने की कोशिश करेंगे, जब भी आप लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करोगे, उसको घूमना पसंद है। लक्ष्मी को घूमना पसंद है। जब भी लक्ष्मी को आप एक जगह रोकने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में ब्लास्ट होना संभव एकदम अवश्य होगा। ब्लास्ट होना ही है। वही रावण के साथ हुआ, दशानन के साथ हुआ। सीता को क्या किया, उन्होंने कैप्चर किया और अशोक वाटिका में बंद करके रख दिया। देखो उसके पास पैसा है, लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी उसको टच भी नहीं करने दे रही है। एक तिनका खड़ा कर दिया। आप एक एक बात को ढंग से समझिएगा, विजुअलाइज करना है उसको, सिर्फ सुनना नहीं है। होता क्या है कि बहुत लोग सुनते हैं लेकिन उसको इंटरनलाइज नहीं करते, उसको ठीक से विजुअलाइज नहीं करते कि सीता अशोक वाटिका में है, रावण आता है और लक्ष्मी को सीता को टच करना चाहता है। जो सीता है एक घास का तिनका खड़ा कर देती है। मैंने उसकी कैपेसिटी देखो, दोनों तरफ से विमेन एम्पावरमेंट के एंगल से भी देखना है उसको, और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी देखना है। क्योंकि वो सीता को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, और कभी भी लक्ष्मी मुट्ठी में नहीं रहती। इट मस्ट बी फ्लोइंग ओनली। इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाइए। जिस इकोनॉमी में पैसा एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है, वह इकोनॉमी डेड हो जाती है या नहीं होती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने दान का इतना महत्व दिया है। दान का महत्व बहुत है कि देते रहना चाहिए, और वो आपने एक्सपीरियंस किया। सब लोगों को मौसमी मिली तो उसका पर्पस क्या था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोगों ने सुना है, जेनरोसिटी डेवलपमेंट, दातृत्व विकास, व्यक्तिमत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, ये सब ने सुना है। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा एकेडमिक हो जाते हैं। अपने आप को किताबों तक सीमित मत रखिएगा। किताबों से बाहर निकलना है। किताबों के साथ उतना ही जुड़े रहना है जितना आपका एग्जाम के लिए जरूरी है। ध्यान से सुन ले। जितना आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, उसके लिए जितना आवश्यक है उतना ही किताबों से जुड़े रहिए। अदरवाइज थिंक बियॉन्ड बुक्स, बी ओरिजिनल, कीप क्वेश्चनिंग थिंग्स। प्रश्न करते रहना चाहिए। प्रश्न करना है विद राइट इंटेंशन, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, कि जानना चाहते हैं क्यों करना है, ये क्यों करना है। अगर जब आप जानते नहीं है कि क्यों करना है और क्या करना है, आप गुलाम बन जाते हो। और अभी मोर और लेस एवरी पर्सन इज स्लेव टू मार्केट। एम आई राइट? आपका ड्रेस कोड भी खुद का नहीं है। समाज में मैक्सिमम गधे जैसा चलते हैं, वैसे बाकी भी चलते हैं। कौन तय करता है? किसी भी चीज, हेयर स्टाइल है, आपका मेकअप है, आपके कपड़े हैं, कौन से त्योहार पे क्या खाना है, ये आपने कहां तय किया? जैसे मैं डाइनिंग हॉल में था, तो मेरा खाना तो 11 बजे हो गया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता और डायरेक्ट 11 बजे खाना खाता हूं।
तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे सज्जन, उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा हूं। मैंने बोला मैं बैठूंगा, मेरा जो न्यूट्रिशन है, बात करने से मुझे न्यूट्रिशन मिल जाता है, और जो फिजिकल न्यूट्रिशन है वो मुझे 11 बजे मिल गया है, बोला उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगे कि आप खा नहीं रहे हैं, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। मैंने बोला डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबॉडी, ही इज वन ऑफ द स्पीकर्स, डोंट गेट इन्फ्लुएंस, बी ओरिजिनल। तुम हो, आप हो, यू आर यूनिक, you understand, you realize your uniqueness. आपका किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर स्वयं को जानना है तो स्वयं के साथ ट्यूनिंग भी तो चाहिए ना। देखो बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने शरीर के ऊपर बहुत काम किया है, देह के ऊपर बहुत काम किया है। बचपन से हमको देह के ऊपर ही काम करना सिखाया गया है। जब घर में सुबह उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत बाद क्या प्रश्न होते हैं? ब्रश किया क्या, नहाया क्या, हाँ? कपड़े ठीक से पहने क्या, यही प्रश्न होते हैं ना। इन प्रश्नों का संबंध, दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू बॉडी। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिव सेशन, हाँ, वन वे नहीं होना चाहिए। और आज मैंने शुरुआत कर दी है। आई एम नॉट एकेडमिशियन, आई डोंट वांट टू बी एकेडमिशियन। आई लव माय चिल्ड्रन, आई लव माय कंट्री। और जैसे मैंने सर को भी कहा कि मुझे मेरे नासिक में आने वाला हर बच्चा, नासिक का हर व्यक्ति, उसको मैं खुश देखना चाहता हूं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, दैट इज डीफ्रैगमेंटेशन। कंप्यूटर में होता है ना, डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं, तो डीफ्रैगमेंटेशन करने के बाद में भीतर बहुत स्पेस क्रिएट होता है। मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है वो किस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स होती है कि स्वामी जी आप अपने ज्ञान का, इंटेलेक्चुअलिज्म का, किताबों का प्रदर्शन करते नहीं बैठते। आप जो श्रोता है, जो लिसनर है, उसके हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए यहां पे मैं समाप्त करके नहीं जाऊंगा, आपके लिए ढेर सारे प्रश्न छोड़ के जाऊंगा। हो सकता है कि उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप अभी इतना इनिशिएटिव ना ले, लेकिन 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद आपको याद आएगा कि अरे स्वामी जी ने कुछ हमारे सामने प्रश्न रखे थे, और वो बेसिक क्वेश्चंस थे जीवन के। बाकी सब तो घास फूस आ जाता है। पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं है, आता है पैसा, लेकिन पैसे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पैसा आपके जीवन में कॉम्प्लेक्स लेके आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आता है, एरोगेंस लेके आता है, हीट लेके आता है, एक्सप्लोजन लेके आता है, और प्रायोरिटी हम भूल जाते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं एक सूत्र छोड़ देता हूं, नया सूत्र पकड़ लेता हूं। एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। मुझे कोई किताब नहीं लिखनी है, मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है, और कनेक्टिविटी के लिए जो भी रास्ता मिले। जो माँ है ना, माँ अपने बच्चों के साथ कभी भी लॉजिकली बिहेव नहीं करती है। करती है क्या? साइकोलॉजिकली बिहेव करती है। तो माय अप्रोच इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल, आई डोंट गो इट लॉजिकल। लॉजिकली जो है ना, वो मशीन चलती है, इंसान लॉजिकली नहीं चलता है। और जब जब हम लॉजिकली जाने की कोशिश करते हैं, जीवन में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। एक बच्चा था, उसकी सौतेली मां थी। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चा अपने पिताजी से कहने लगा कि ये जो नई माँ है ना, वो बहुत ही सच्ची माँ है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है। वो पहले की जो माँ थी, माने उसकी जो रियल मदर थी, वो झूठ बोलती थी।
लेकिन ये जो है ये सच बोलती है। तो पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहा है बच्चा। तो पिताजी ने पूछा कि बेटे बताओ क्या हुआ, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो बेटे ने कहा कि जो पुरानी माँ है ना, वो हर रोज मुझसे कहती थी कि आज अगर देरी से आया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। रोज कहती थी कि अगर देरी से आया तो मैं खाना नहीं दूंगी, और रोज मैं देरी से आता था और रोज मुझे खाना देती थी। लेकिन ये जो नई माँ है ना, वो एकदम सच्ची है। वो कहती है अगर तू देरी से आया तो तुझे खाना नहीं दूंगी, और रोज मुझे खाना नहीं देती है। सच्ची माँ है ना। तो हमारा पेपर वर्क बहुत सच्चा होता है ना। पेपर वर्क जो है ना, आजकल जो फॉर्मल वर्ल्ड है उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है, राइट। सबमिशन बहुत क्लियर है, लेकिन जिंदगी क्लियर नहीं है। तो पेपर और जीवन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। हमारे देश में देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स निकलती है, पेपर वर्क एकदम क्लियर होता है। रोड बन गया, एकदम क्लियर है। आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उसको। कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट तो कागज देखेगा। कागज क्या कहते हैं कि रोड बन गया। लेकिन माँ कभी कागज नहीं देखती। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है ना, तो रियल माँ जो सच्ची माँ है उसको समझना होगा। वन हु इज मदर बाय हार्ट। हमारे भारत में दो तरह के शब्द हैं, एक जनक जननी और एक माता पिता। जनक जननी इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसका एमसी शुरू हो गया, शी इज रेडी टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी हो गई, बट शी कैन नॉट बी माता। वो जनक जननी बन सकती है। माता और पिता कब बन सकते हैं? जब आपके भीतर एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है। नॉट नेसेसरीली यू आर ग्रेजुएट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट और यू आर पीएचडी। ऐसे बहुत सारे पीएचडी या बड़े बड़े पोजीशन पे ऐसे लोग हैं कि जो केवल जनक जननी है, माता पिता नहीं है। और वो क्या कहते हैं? वो जनक जननी कहते हैं कि वी गिव क्वालिटी टाइम टू आवर चिल्ड्रन। क्वालिटी टाइम देते हैं, सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं। ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप इतना करने के बावजूद भी ट्रिमेंडस डिससैटिस्फैक्शन भीतर है। आपको मैं गहराई में लेके जा रहा हूं। वी आर मेडिटेटिंग, हमारा मेडिटेशन चल रहा है, 1 आवर मेडिटेशन होगा। आपको इंफॉर्मेशन देना मेरा पर्पस नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको किताबों में मिल जाएगी और हम साथ साथ गहराई में उतरेंगे। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। अगेन आई रिपीट, मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। देयर इज नो एक्साइटमेंट इन माई लाइफ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और ये समझ में आ गया है कि कुछ भी प्राप्त करने के बाद आप कुछ पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होते, पहले से आप पूर्ण हो। बस आपको भीतर की तरफ देखना है, पैसे को समझना है। जैसे हमने ये तो समझ लिया, वी ऑल आर हियर नॉट फॉर नॉलेज बट फॉर मनी। ये क्लियर हो गया, कोई गलत नहीं उसमें। पैसा चाहिए, but one has to understand utility of money and futility of money. How that money is futile and how that money is useful. जब सुनामी हुआ, सुनामी के समय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने उसके जीवन की घटना सोशल मीडिया पे डाली थी। वो कहता है मेरे पास 3 बैंक्स में बहुत अच्छा खासा पैसा है। मद्रास की
चेन्नई के प्राइम लोकेशन पे मेरा फ्लैट है, गाड़ी है एकदम एडवांस 4 व्हीलर है, घर बहुत आलीशान है, फुल ऑफ लग्जरीज। फिर वो पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग एट प्रेजेंट? तो वो कहता है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेरेस एंड वेटिंग फॉर 250 ml water pouch, 3 chapatis, rice, sabji to be dropped from helicopter. You understand? फिर वो लिखते हैं कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर आपको पूरी तरह से समझा देता कि आपकी औकात क्या है। कितना भी एडवांस हो जाइए, वो कहते हैं ना हिंदी में कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिस्टिक स्टेटमेंट है, ये डिप्रेसिंग स्टेटमेंट नहीं है। शुरू में हो सकता है, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मृत्यु के ऊपर ध्यान करना। शुरू में डर लगता है, लेकिन एक बार आपका शेक हैंड हो गया मृत्यु से, आपके जीवन से सुसाइड समाप्त हो जाती है। जिसने मृत्यु का ढंग से ध्यान किया, उसके जीवन में सुसाइड नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। आजकल तो हमको ये सुनने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास इतने रील्स गुरु इतने बढ़ गए हैं, यूट्यूब गुरु इतने बढ़ गए हैं, और काम क्या होता है, कमिटिंग टू मेमोरी एंड ओमिटिंग ऑन यूट्यूब। थोड़ा एक दो कोर्सेस कर लेते हैं और योगा टीचर बन जाते हैं। भीतर की ओर उतरना होगा ना, गहराई में उतरना होगा। पैसा कमाने या नहीं, सर्वसाधारण रूप से क्या कहते हैं, इसने मोह माया का त्याग किया। ये भारत की सोच नहीं है, बहुत ही जिसको हम क्या कहते डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट किया गया। अन्नम न निंद्या, मैटर मस्ट नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड, मैटर मस्ट बी क्रिएटेड मोर एंड मोर। पैसा बढ़ाना चाहिए, लेकिन पैसे को कैसे हैंडल करते ये समझ में आना चाहिए। राम सीता को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज राम गिव्स फ्रीडम टू सीता। लक्ष्मी को फ्रीडम चाहिए, लक्ष्मी कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहती। और जिन जिन लोगों ने लक्ष्मी को रिस्ट्रिक्टेड करने का प्रयास किया है, उनके जीवन में ब्लास्ट हुआ है। माइथोलॉजिकल एग्जांपल है रावण। ऐसे बहुत सारे रावण है सोसाइटी में। आप तो पढ़ाई कर रहे हो, तो रिसर्च में देख लेना कि पैसा कमाने वाले लोग जो है, कौन मास्टर होता है, कौन स्लेव होता है। जिस पैसे के कारण आपके जीवन में एरोगेंस आएगा, तो समझ लेना कि भीतर का जो है वो रावण परमानेंट हो रहा है। और जिस पैसे के कारण आपके भीतर में स्टेबिलिटी रहेगी, हेनरी फोर्ड का एक सेंटेंस है, द बिजनेस व्हिच जनरेट्स मियर मनी इज पुअर बिजनेस। लिख लीजिए, भविष्य में काम में आएगा लेक्चर देने के लिए। The business which generates mere money is poor business. इंसान तैयार होना चाहिए, मनुष्य तैयार होना चाहिए, मनुष्य निर्माण होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट, एवर एफल्जेंट, चेहरे के ऊपर हमेशा रिलैक्सेशन हो। टेंशन क्यों चाहिए भाई? टेंशन क्यों चाहिए? Your life must be free from tension and full of attention. Remember, your life must be free from tension and full of attention. Attention के लिए आपको पूरी तरह से रोमांटिक होना जरूरी है, vulgar romantic, that is not romance. Collision between two bodies is not romance, that is collision. रोमांस वो होता है कि पूरी तरह से आप उसके गहराई में उतर जाते हो। परमहंस योगानंद जी, उनके किताब के बारे में आपने सुना होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उनकी और एक किताब है डिवाइन रोमांस नाम की। मैंने क्यों वर्ड यूज किया रोमांस?
क्योंकि देखिए ना, रोहन जैसे वर्ड यूज किया आपके दिमाग में घटिया चीजें आना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी जो सोच है ना मैटर के परे जा ही नहीं रही है ना। ऐसे ही वर्ड्स यूज हो रहे हैं। टेंशन वर्ड यूज होता है, हालांकि ये टेंशन जो है ना, इट वॉज नेवर अप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ये फिजिक्स का वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है, टेंशन इन वायर। फिर आप सोचेंगे कि ये मनुष्य के लिए कैसे अप्लाई होने लगा। आप जिन लोगों का संग करेंगे वैसे ही टर्मिनोलॉजी आपके जीवन पे हावी होगी। अभी क्या करते हैं कि दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अरे ये सब डिलीट कर दो ना, डिलीट वर्ड यूज करते हैं ना। या किसी के पिताजी गुजर गए, तो हालांकि वो इंग्लिश में उस तरह से वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन भारत में किसी के पिताजी या माताजी उनका स्वर्गवास हो गया, तो क्या शब्द कहते हैं कि उसके पिताजी, पता है आपको, बोलो, ऑफ हो गए, नहीं एक्सपर्ट वगैरह नहीं, ऑफ हो गए बोलते आजकल, ऑफ हो गए, ये वर्ड प्रचलित हो रहा है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, आपकी जो मटेरियलिस्टिक टर्मिनोलॉजी है, जितना आप मैटर में उलझते जाओगे आपकी टर्मिनोलॉजी भी मटेरियलिस्टिक होती जाएगी। भारत में मरने की कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए पहले जो लिखा जाता था, उनके पिताजी का शरीर शांत हुआ, वो मर गए, इन शब्दों का व्यवहार नहीं होता था। बहुत धीरे धीरे इन चीजों को समझना, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा भी फ्रीडम लेता हूं बोलने का। हमारे यहाँ पे किसी लड़की का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है, हा? या राधा का जन्म हुआ है, या शक्ति का जन्म हुआ है। अभी देखो, अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए, हा? महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जनरली क्या वर्ड यूज किए जाते हैं? बहुत ही लाइट लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय आल्सो देम। अभी क्या कहे, हाँ, एटम वर्ड यूज किया जाता है, स्लोली उसमें जाना, किया जाता है या नहीं किया जाता है, हाँ या ना, यस, हाँ, एटम वर्ड यूज किया जाता है। एटम का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ? जो मॉल में जाते हैं ना, वहां पे लिखा होता है, हाँ? नंबर ऑफ एटम्स लिखा जाए, राइट और रॉन्ग? I am not here to lecture you, remember, but I am here to awaken you. I am awakener. I don't want to be speaker, although people say that I am very good speaker, but I don't want to speaker. I am awakener because life is yours. और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। एटम, माल, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। क्यों टर्मिनोलॉजी चेंज? जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे दिमाग चेंज होता है, और जैसे जैसे दिमाग चेंज होता है वैसे टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। भारत के जो शब्द है ना, these are all spiritual words। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? Because you have to change society। ये मत समझना कि तुम्हारे जो पूर्वज है, माता पिता है, they are very wise people, they must be respected, लेकिन प्रश्न करना नहीं बोलना बेटा, प्रश्न तो हमेशा करना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने भी अपने पिताजी को, घर वालों को बहुत सारे प्रश्न किए होंगे, लेकिन जब पता चला कि माता पिताओं के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, then he started self inquiry, खुद निकल पड़े। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको समाज नहीं दे पाता, जिन प्रश्नों का उत्तर आपके माता पिता नहीं दे पाते, उन प्रश्नों के उत्तर के लिए खुद निकल पड़ना। लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा। पैसा समझना ठीक से, शादी को समझना ठीक से। शादी के बारे में क्यों कह रहा हूं ये भी, जो शादी है, जो गिफ्ट बेस्ड शादी होती है, उसमें कभी भी प्रेम नहीं पनप सकता। वो बैलेंस शीट बेस्ड शादी होती है, क्योंकि शुरुआत ही गड़बड़ होगी। एक पति पत्नी में एक संवाद है। पति अपने पत्नी से कहता है कि
look dear, I am going to work hard and one day we will become rich. पत्नी कहती है, she is very spiritual. है spiritual माने ये नहीं समझना कि दिन रात मंदिर 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 करते रहती, वो spiritual नहीं होते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई spiritual है तो वो मंदिर ही जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Spiritual means he is clear or she is clear and very humble and very down to earth. वो होता है spiritual. Ratan Tata is deeply spiritual person. Ratan Tata is deeply spiritual person. And often I say about him, he is Sant Ratan Tata. नारायण मूर्ति, he is संत नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति को देख लीजिए, उनके बाल भी, आपके बाल तो ठीक से एकदम वेल ड्रेस्ड है, उनके बाल तो ऐसे खुले रहते हैं। She must be role model for you, not entertainment industry full of hypocrites. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसी भी लैंग्वेज की हो, चाहे मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वो जो मनोरंजन का जो बाजार है ना, उसको देख के अपनी जिंदगी नहीं बनाना। आपका जीवन बहुत सिंपल रहेगा। सुधा मूर्ति देखिए, लड़कियों के लिए या औरतों के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नारायण मूर्ति देखिए, रतन टाटा देखिए, वो हमारे रोल मॉडल है। दे आर डीपली स्पिरिचुअल पीपल बिकॉज दे आर फुल्ली रूटेड इन स्पिरिट, एसेंस। स्पिरिट माने क्या होता है? एसेंस, सार, जीवन के सार से जुड़े हुए। रूट्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिविंग एट द रूट्स। स्वामी विवेकानंद की एक किताब है, उस किताब का नाम ही है लिविंग एट द सोर्स। When you live at the source, that is spirituality. Living at the source. Body is not source. मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि शरीर के बारे में आपको प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन किसी ने कभी पूछा कि मन को नहलाया क्या, मन को साफ किया क्या? किसी ने पूछा है क्या? Yes or no? No, never. मन के तरफ देखा ही नहीं हमने। मन के तरफ देखना बहुत आवश्यक है। अगर मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और आजकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोमैटिक डिसऑर्डर्स नहीं है, सोमैटिक मींस बॉडीली रिलेटेड। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीजें जो है एकदम अंदर अंडरलाइन करके रखना है कि कभी भी हम टेंशन नहीं लेंगे। हर व्यक्ति को पहले ही अटेम्प्ट में जॉब मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। जब भारत में अंधेरा होता है तो अमेरिका में उजाला होता है। जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। जब अमेरिका में रात होती है तो भारत में दिन होता है। हर एक के जीवन की साइकिल अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का अपना यूनिवर्स है। एवरी पर्सन इज यूनिक। और ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके जो घटिया मोटिवेशनल स्पीकर है और सो कॉल्ड ट्रेनर है, उन्होंने जिंदगी को बहुत ही घटिया बना दिया है। बहुत सारे ट्रेनिंग वगैरह लेने का, देन ही बिकेम सीईओ ऑफ दैट कंपनी। खुश रहने के लिए सीईओ बनना जरूरी नहीं है। जो सीईओ बनता है ना, कुछ अगर गिने चुने एग्जाम्पल छोड़ दीजिए तो बहुत ही घटिया मानसिकता में होते हैं। दे आर अनेबल टू सेलिब्रेट लाइफ। पीपल ऑन द टॉप, दे आर ऑलवेज अलोन, लोनली। पीपल ऑन द टॉप, दे आर ऑलवेज अलोन, लोनली। दे सफर फ्रॉम लोनलीनेस सिंड्रोम। पैसा कमाना, लेकिन पैसे को सेलिब्रेट करना, लक्ष्मी को सेलिब्रेट करना, लक्ष्मी को खुला रखना, देना। देने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों में देना है। जो भी आपके पास है, शेयरिंग अप्रोच हमेशा रखना। और उसका तो मैंने एग्जांपल बाय डीड दे दिया है। हाँ, कैसे दिया है? वो लेके आया था, भगवान की कृपा से था और दे दिया। जीवन को सिंपल रखिए
और जैसे मैंने कहा कि आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं, अपनी तरफ से तो मैंने कमिट कर दिया। मेरा जो नंबर है नासिक में लाखों लोगों के पास है, बाकी और जगह तो है ही, मैं हर जगह जाता हूं, मेरा नंबर देके मैं अपने आप को आपके हवाले सौंप देता हूं कि बस आप यूटिलाइज कीजिए, आपको कितना यूटिलाइज करना है। मुझे कभी रात को 12 बजे भी कॉल आता है, कुछ लोग रोने के लिए भी कॉल करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना। दुनिया के सामने नहीं रोना, रोने के लिए भी कुछ गिनी चुनी जगह चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है ना, जो मार्केट है, आपको रोता हुआ देख के भीतर ही भीतर हंसेंगे, वो विकृति होती है। तो मेरे पास लोग क्यों रोते हैं? कहीं ना कहीं रोना, जिसको साइकोलॉजी में पेंट अप इमोशंस कहते हैं, पेंट अप इमोशंस, भीतर में बहुत सारी इमोशंस हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी हो क्या रहा है, जिनके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उनके दिमाग में पैसा ही चलते रहता है, क्योंकि वो एकेडमिक काउंसलर होते हैं, वो मनी बेस्ड काउंसलर होते हैं, उनके अंदर में उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इस बात को समझ रहे हो ना आप? बात को समझ रहे हो क्या? यस और नो? यस। तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आपको 15 मिनट दे दिया काउंसलिंग का, उसके बाद में उसके दिमाग में चलता है, अच्छा 500 ऐड हो गया। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल वर्ड में मनी डजंट वर्क। वो हमने कहा था कि उस पति ने पत्नी से कहा, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड एंड वन डे वी विल बिकम रिच। बीबी ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा? यू सी, आई एम इन योर लाइफ, यू आर इन माई लाइफ, वी आर ऑलरेडी रिच, यू वर्क हार्ड, वन डे वी विल हैव मोर मनी। अंडरस्टैंड डिफरेंस? वी आर ऑलरेडी रिच। तो जीवन में जब पार्टनर भी खोजोगे ना, और हाईली टैलेंटेड वगैरह वो झंझट में नहीं पड़ना, वेदर ही और शी इज राइट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका नजरिया जो है वो बॉडी बेस नहीं रहेगा, क्योंकि जो बॉडी है ना, इट इज बाउंड टू पेरिश। एक आपको कहानी सुनाता हूं। अच्छा 47, एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सुलझी हुई युवती थी, लड़की थी, पुराना जमाना, एक नगर में रहती थी, और उस नगर का जो राजकुमार है वो ऐसे टहलने निकला। तो टहलने निकलते हैं तो वो गैलरी से देख रही थी, सब भीड़ थी, आजू बाजू की जितनी भी हवेलियां थी, हवेलियों में से बहुत सारे लोग उस राजकुमार को और उसकी जो पूरी जो बहुत सारे लोग थे उनको देख रहे थे। तो इस राजकुमार की नजर उस लड़की पे पड़ी। वो लड़की थी एक नगर सेठ की लड़की, वहां का जो बहुत बड़ा व्यापारी था उसकी लड़की थी, लेकिन बहुत सुलझे हुए दिमाग की थी, बहुत दिखने में अद्भुत सुंदर थी। तो राजकुमार की नजर उसके ऊपर पड़ गई। तो राजकुमार के मन में विचार आया कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। तो ठीक है, वो नगर सेठ के पास, उस व्यापारी के पास चला गया और उसको कहा कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। बाप तो खुश हो गया, मेरी बेटी रानी बनेगी, राजकुमार शादी करने के लिए राजी हो गया है। तो उसने कहा, क्योंकि उसको पता था, व्यापारी को पता था कि मेरी लड़की बहुत ही सुलझे दिमाग की है और बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, दिमाग में कचरा लेके नहीं घूमती है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर मैं कुछ इंपोज नहीं कर सकता। तो उस व्यापारी ने कहा, नगर सेठ ने कहा कि मेरी तो इच्छा है लेकिन उसको भी पूछना पड़ेगा। तो घर गया राजकुमार, उसने कहा कि देखो मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो उस लड़की को समझ में आ गया कि इसका दिमाग कहां पे अटक गया है। ये जो राजकुमार का दिमाग कहां पे अटक गया, कहां पे टिक गया है, ये समझ में आया। ठीक है, बोले राजन मैं शादी करूंगी, आप ऐसा कीजिए 1 महीने के बाद आइए। 1 महीना क्या किया, उसने लैक्सेटिव लेना शुरू किया।
जमाल गोटा, लैक्सेटिव, और बहुत उसको लूज मोशन, कंटिन्यूसली लूज मोशन चल रहा था। 1 महीने तक उसका लूज मोशन होते रहा। फिर महीना खत्म हो गया। वो जो राजकुमार है इस युवती से, इस लड़के से मिलने आया। तो ये अंदर थी, ये दिख नहीं रही थी, बीच में पर्दा था। तो राजकुमार से वो पूछती है कि राजन, आप मेरा हाथ तो कभी नहीं छोड़ोगे ना? हमेशा मुझे ऐसा ही प्यार करोगे जैसा आपने पहले दिन व्यक्त किया था? तो राजकुमार कह रहा कि हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो बार बार पूछे जा रही है, राजन मेरा हाथ तो नहीं छोड़ोगे ना, मुझे हमेशा संभालोगे ना? तो कह रहा है कि हाँ, लेकिन तुम इतना बार बार क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बातें चल रही है, उसी समय वो पर्दा बाजू होता है। उसकी आंखें पूरी भीतर गई हुई है, चेहरा काला पड़ा हुआ है, और पहले बहुत सुंदर दिखती थी, वो बहुत ही अभी भौतिक दृष्टि से, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बहुत ही कुरूप दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है। तो वो तो एकदम हैंग हो गया उसका दिमाग, वैसे देखते रह गया। फिर वो युवती, वो लड़की कहती है कि राजन, जिसके साथ आपको प्यार हुआ था ना, वो इन बर्तनों में है। वो क्या करती थी, पूरे महीना उन्होंने उन बर्तनों में टट्टी किया, और जितने भी बर्तन थे वो बर्तन भरे हुए थे। तो वो लड़की कहती है कि राजन, आप जिससे प्यार कर रहे थे ना, वो इसमें, इन बर्तनों में है। फिर वो पूछती है, राजन मुझसे शादी करोगे? आगे का आप जानते हो। तो बात क्या है, मैटर में उतना ही अटकना जितना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैटर जो है ना, आपको बेवकूफ बनाता है। आप जुड़े रहिएगा, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, नासिक में ही रहता हूँ। जो बाहर से आए हुए हैं वो भी कभी कांटेक्ट कर सकते हैं, नासिक त्र्यंबकेश्वर चलते रहता है। आई एम अवेलेबल 24/7। अगर मेरा कहीं पे लेक्चर या कोई काउंसलिंग सेशन न चलता हो, किसी ने मुझे कॉल किया है, अगर कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया तो आप एक मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, या उस समय भी कॉल नहीं आया तो और एक बार कॉल कर लेना। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को मैं कॉल बैक करता हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपने पढ़ा ही है, मला स्वतःसाठी काहीही मिळवायचं नाही, काहीच मिळवायचं नाही, पण मला तुमच्या चेहऱ्यावर आनंद बघायचा आहे। पैशाविषयी मला टेन्शनच नाही आहे, पैसा तर भंगारवालाही कमावून घेतो हो, आणि बरेचदा असं होतं की भंगारवाला जास्त कमावतो, कारण की त्याच्यामध्ये स्टेटसचा प्रॉब्लेम नसतो। जे लोक कॉलेजमध्ये ज्यांच्याकडे डिग्र्या वगैरे असतात ना, त्यांचा प्रॉब्लेम काय असतो की त्यांचं स्टेटस मेंटेन करण्यामध्येच अर्धी सॅलरी निघून जाते, भंगारवाल्याचा तो प्रॉब्लेम नसतो। त्यामुळे आपण संपर्कात रहो, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, वैसे वहां पे भी नंबर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है। हाँ, स्टे कनेक्टेड। आप मुझे ऐसा मत समझना कि स्वामी जी भूल गए होंगे, बस इतना याद दिलाना कि एमईटी में मुलाकात हुई थी, बस इतना, दैट इज इनफ, बिकॉज यू आर माय पीपल। वी बिलोंग टू सेम मदर, नॉट सेम बायोलॉजिकल मदर, वी बिलोंग टू सेम कंट्री। तो आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास जो है, अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो ये मेरे लिए मातृद्रोह, देशद्रोह साबित होगा। तो मैं मातृद्रोही या देशद्रोही नहीं बनना चाहता। किसी को बोर हुआ क्या इस सेशन में? नॉट एट ऑल, वेरी गुड। अभी अपने माँ की भी तो जय जयकार होनी चाहिए ना, हम सबकी माँ, बियॉन्ड बायोलॉजिकल मदर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव तो होना चाहिए ना, हर सेशन के लास्ट में होता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ अवेकनिंग, ऑलवेज बी अवेकन्ड। लाइफ इज योर्स, मॅन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य हा स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे, कोणी काही दुसरं आपलं भाग्य बनवत नसतं। या हाताचे जे रेषा आहेत ना, त्या आपण तयार करत असतो। तो यू मस्ट बी मेकर ऑफ युअर ओन डेस्टिनी। तर भारत, हा माईक सुरू होईल का बेटा? सुरू आहे। आप इथे दिसलाय पण, हॅलो,
भारत माता की जयच्या वेळेस दोन्ही हात वर गेले पाहिजे. हा, आतमधला जो बाळ आहे ना तो जागृत ठेवायचा, जास्त फॉर्मल व्हायचं नाही. हा, ऑफिस मध्ये वगैरे ज्यावेळेस काम कराल ना, ऑफिस संपलं घरी गेलं की जो कोट ब्लेझर वगैरे एका कोपऱ्यात टाकून द्यायचा, आणि जर जमलं तर लिटरली फेकूनही द्यायचं. झालं म्हणा, संपलं. आणि मस्त छोटस जे बाळ असतं ना ते बाळ ते आठवायचं. बैती हवा सा था, उड़ती पतंग सा था, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राह चलाती, वो तो अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था. है ना? तर ती जी मस्ती आहे आतमधली, मोठ्यांची मस्ती नाहीये, ती मस्ती तर डोक्यात जाते. ही नाही, तर लहान मुलांची जी मस्ती आहे ती मस्ती कायम ठेवायची. राईट? आता भारत माता की जयच्या वेळेस जर तुमच्या सर्वांचे हात वर नाही गेले तर मी समजणार की यांना काहीतरी फिजिकल प्रॉब्लेम आहे, श्रोजन. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव. बेटा संपर्कात राहा.